हाँ बच्चे 26, हाँ 26 तो मेरे को बच्चे दिख रहे हैं, वो जुड़ते जाएंगे। अच्छा, और anyways, this lecture we are recording, or later on Okay. we will release on YouTube. okay, okay, sir. Yes. हाँ, so if you are ready, ma'am, can we start? Yes, sir. No problem. Yes. Okay. So, audience, I now welcome ma'am for our lecture series in biological sciences. I invite Dr. Rashmi Parihar madam to kindly introduce the speaker of current session. Dr. Rashmi Thank you. Parihar madam. Thank you, sir. And it is my great privilege to introduce Dr. Sarita Mowade to the audience. And Dr. Sarita is a leading entrepreneur from Nagpur, and I feel highly happy, highly elated to tell the audience that recently she has been honored with the prestigious Maharashtra Ratna Award. And actually she has started her journey from National Environmental Engineering Research Institute, NERI, Nagpur, and then she worked under National Center of Organic Farming, Ministry of Agriculture, New Delhi. And presently she is working under SS Technovision and Eco Solutions, Nagpur, and she has an expertise and consultant in biostimulants, biofertilizers, biopesticides, and organic farming. And more to add, she has published 2 books and published more than 7 training manuals for farmers. And she is a very sincere seeker of spirituality, and she is well known to extend her services from lab to land to the local farmers of the Maharashtra region. And I extend a very warm welcome to you, madam, and I invite you to deliver your talk on biofertilizers in agriculture. Please, madam. Thank you so much, Dr. Rashmi. आपने बहुत कुछ ज्यादा बता दिया ऐसे लगता है मुझे. Madam, in a very short time, I have cited only few. There are many more to tell. Okay, madam. So, thank you so much. नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता मोवाडे फ्रॉम नागपुर हूँ. MSc और PhD मैंने माइक्रोबायोलॉजी में किया है नागपुर यूनिवर्सिटी से. और मेरा हमेशा से एक बहुत अच्छा टॉपिक हमेशा मेरे साथ रहा है बायोफर्टिलाइजर्स. स्टार्टिंग फ्रॉम माई PhD टू MSc, फिर PhD भी बायोफर्टिलाइजर्स में हुआ. फिर मेरा काम भी वैसे ही हुआ. गवर्नमेंट में जो काम किया, प्रोडक्शन यूनिट्स में काम करते थे हम लोग बायोफर्टिलाइजर्स के. उसके बाद मैंने अपना खुद का जर्नी शुरू की, जैसे मैडम ने अभी बताया. तो अभी मेरा SS टेक्नोविजन एंड इको सॉल्यूशंस नागपुर में हम लोग रन करते हैं. एक छोटी सी फर्म है, उसमें बायोस्टिमुलेंट्स और बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए हम लोग बनाते हैं और मैन्युफैक्चर करके मार्केटिंग करते हैं. और इसके पहले तो मैं डॉक्टर रश्मि जी और डॉक्टर कश्यप जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस लेक्चर सीरीज के लिए इनवाइट किया है लेक्चर देने के लिए. थैंक यू सो मच सर एंड मैडम. और बच्चों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं आपके सामने आई हूँ, आपसे बातचीत करूँगी, डिस्कस होगा. तो चलते हैं. अभी आज का टॉपिक मिला है बायोफर्टिलाइजर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रीकल्चर. बायोफर्टिलाइजर्स आप लोगों को मालूम ही होगा, जैसे ये टर्म तो अवेयरनेस होगा ही आपके बीच में. बायो मीन्स माइक्रोब्स एंड फर्टिलाइजर्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स, मीन्स सप्लायर ऑफ मीन्स माइक्रोब्स से जो भी हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाते हैं टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ सॉइल, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन. इसे हम लोग एक टर्म दी है बायोफर्टिलाइजर्स. ओके. और आप सब लोगों को मालूम है कि सॉइल में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं. सॉइल इज रिच इन डिफरेंट hundreds or thousands or lakhs of bacteria, fungi, active acids, and photosynthetic bacteria, cellulitic bacteria. These are all present in soil. But for that, our soil should be fertile enough to have such ample quantity of these microorganisms. Okay. So, and these microorganisms क्या करते हैं soil में? These microorganisms plays very important role in mobilization and availability of different types of nutrients, that is organic, inorganic nutrients,
from unavailable forms to available form and vice versa. जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करना, उसके न्यूट्रिएंट्स रिलीज करना और फिर सॉइल में लाना, ये सब काम, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, कुछ न्यूट्रिएंट्स है उसका रिसाइकलिंग करना, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही काम करते हैं सॉइल में. वी कैन से दे आर restless engineers of soil, we can say. So for that, to maintain the fertility status of any soil, it is very important to maintain certain amount of microflora in the soil. Okay, and there are certain group of microorganisms. Mainly we can discuss nitrogen fixing bacteria. This comes under one group, that is nitrogen fixers. फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम है, एसिडोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, एसिटोबैक्टर है, ये सब बैक्टीरिया इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग ग्रुप में आते हैं. नेक्स्ट इज फॉस्फेट सोल्युबलाइजर. मैं इसलिए बोल रही हूँ कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कार्बन, दीज आर द मोस्ट एसेंशियल मेजर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ. दैट्स व्हाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, दीज आर मोर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट है फॉस्फेट सोल्युबलाइजर्स, जैसे बैसिलस मेगाथेरियम है, सुडोमोनास स्ट्राटा है, एस्परजिलस ओवामुरी है, पेनिसिलियम डिजिटेटम है, ये सब बैक्टीरिया फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन का काम करते हैं. हाउ दे डू एक्चुअली, दे सीक्रेट सम एसिड्स एंड पीएच चेंज करके उसका इट कन्वर्ट्स द इनसोल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फेट टू सोल्युबल फॉर्म, और ये प्लांट्स को अवेलेबल फॉर्म में लाके रख देते हैं सॉइल. जैसे माइकोराइजा, माइकोराइजा भी एक अच्छा बायोफर्टिलाइजर है. VA माइकोराइजा, जिसको हम लोग वैम बोलते हैं, VAM. What does it do actually? It is not only responsible for improved uptake of phosphate, nutrients, water from the soil, but also it is responsible for the strong root system development and disease resistance against the nematodes also. And you must be knowing some waste decomposers. जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, उसको अगर डिकम्पोज करना है उसके लिए भी कुछ बैक्टीरिया खंजा काम करते हैं सॉइल में, ताकि उसका कार्बन जो है एक रिलीज करके सॉइल में लाकर रख देते हैं. आपको मालूम है कि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे हम लोग खाना खाते हैं क्योंकि एनर्जी चाहिए रहती काम करने के लिए, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी खाना चाहिए होता है काम करने के लिए, एनर्जी के लिए. इन दैट केस they utilize the carbohydrates from the soil, organic carbon, organic matter से organic carbon आता है soil में, और वो carbon वो utilize करते हैं, इसलिए carbon is more important. So these microorganisms plays very important role in nutrient cycles. That is carbon cycle, hydrogen cycle, oxygen, nitrogen, phosphate, potash, ये सब cycle से एटमोस्फेयर की, इसमें ये माइक्रोब बहुत ही important रोल प्ले करते हैं. In short, we can discuss this carbon cycle. These microbes decompose the organic matter, dead tissues of the plants and animals, and release the carbon and other nutrients also from the organic matter into the soil, and organically bound carbon, that is CO2, is released in the atmosphere. Nitrogen cycle, most important cycle is nitrogen cycle. Atmosphere generally contains 78% of the elemental nitrogen, and this gaseous nitrogen is and on entire Earth, it has been estimated that 250 million tons of nitrogen is being fixed totally on Earth annually, and out of that 50 million tons of this nitrogen is being fixed by the industrial means, and 30 million tons is being fixed by the natural means, the natural processes like lightning, etc. And remaining portion, that is the 170 million tons of the nitrogen, is being fixed by these tiny microorganisms, means nitrogen fixing bacteria, which are present in the soil and also in the water. So from this, we can have an idea about the great potential of this nitrogen fixing bacteria with respect to nitrogen fixation. That's why nitrogen fixing bacteria are most important. They fix nitrogen with process, that is biological nitrogen fixation.
phosphorus cycle is also important. Generally, phosphorus naturally present in the soil, in protoplasm also, or in complex form actually, organic and inorganic complexes. After decay of the organism, it comes to the soil and converts into the inorganic form, that is the phosphoric acid. And then to the salts of calcium, salts of magnesium, salts of ferrous. This process takes place in the soil. Means it is the fixation of the phosphorus. It is insoluble form of phosphorus is present in the soil in the form of these salts. But there are some agencies of microbes, that is phosphate solubilizing microorganisms, which secrete some acids, and it makes the insoluble form of phosphate to soluble form of phosphate. It converts actually, and this soluble form of phosphate will be is released in the soil, is available to the plants. And so, and biofertilizers are prepared from such beneficial microorganisms. Does such microorganisms are not present in the soil? Yes, these are present in natural fertile soil. These are present in ample quantity. But after green revolution, you can say there is excess use of chemical fertilizers and pesticide in the agriculture. So there is decline in the organic carbon in the soil, and due to excess use of chemicals, carbon has been declined, and their strength is also declined. Microbe strength has gone down actually, and means we can say the soil has become drained down. Now, how to restore the fertility of the soil? Then we have to restore the microbes, such beneficial microbes in the soil, in the form of biofertilizers. Is it okay? To restore the fertility of the soil, these microorganisms are to be replenished in the form of biofertilizer. We have to inoculate soil with the beneficial microbes. Then what is biofertilizers? Biofertilizers are the carrier base or the liquid base formulations of such beneficial microbes. Beneficial microbes means nitrogen fixing, phosphate solubilizing, potash mobilizing, zinc solubilizing, different types of bacteria or the fungi. पास अभी बहुत सारा पैसा है, 500-500 करके बहुत सारा होगा, Beneficial 3000. लेकिन so biofertilizers are live microbial preparation meant for use in the agriculture for growth, promotion, and nutrient mobilization. And these biofertilizers, these biological inputs, are being covered under the fertilizer control order nowadays. It comes under the act. So whoever wants to open their production units, biofertilizers or the biopesticides also, they need to take license and permissions from the state government departments. What is the scientific definition of biofertilizers? Biofertilizers or microbial inoculants are carrier-based, ready to use live microbial formulations, which on application through seeds, seedling roots, or the soil and composting pits help in mobilization of various nutrients from their natural unavailable forms to available forms by their biological activity. They plays very important role in mobilization of the nutrients in the soil, recycling of the nutrients in the soil. As per FCO, fertilizer control order, biofertilizers means the product containing carrier base. It may be solid or the liquid. Living microorganisms which are agriculturally useful in terms of nitrogen fixation, phosphorus solubilization, or other nutrient mobilization to increase the productivity of the soil or the productivity of the crops in agriculture. जैसे हम बोलते हैं कि बायोफर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, इसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं चलेगा. एज पर एफसीओ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से it should have the capacity to fix the nitrogen or phosphate solubilization or nutrient mobilization.
इसके अलावा जो भी बैक्टीरिया का मिक्सचर भी बनाते हैं आजकल लोग, जैसे कॉन्सर्शिया बोलते हैं, मिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही सॉल्यूशन में बनाते हैं और उसको भी मार्केटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव माइक्रोब्स। ये भी अभी एक्ट में लाने का सोच रहे हो लोग, ये भी लाइन में है, लाइन अप किया है इसको। Term biofertilizer is now protected by law. Term biofertilizer is now protected by the law under Fertilizer Control Order and can be used only for products as per the definition of FCO. No other products such as organic manure, manures enriched with microorganisms, or any other formulation not covered by the definition can be termed as biofertilizer. Is it okay? अभी बायोफर्टिलाइजर जो है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग, phosphate solubilizing, potash mobilizing, zinc solubilizer, this comes under the biofertilizers. Even mycorrhiza, it comes under the biofertilizer category, and it comes under the Fertilizer Control Order Act. What are the types of biofertilizers? Main to nitrogen fixers है, then comes phosphatic biofertilizers, potash mobilizers, zinc solubilizers, and then comes VA mycorrhiza. अंडर नाइट्रोजन फिक्सिंग कैटेगरी राइजोबियम है, जो लेग्यूम्स होते हैं दाल वर्गीय, जैसे सोयाबीन है, मूंग है, उड़द है, ग्राउंडनट, काउपी, ये सब फ्रेंच बीन्स है, पी ग्रुप से, ये सब राइजोबियम के अंडर में आते हैं। और हर एक क्रॉप्स के लिए राइजोबियम इज वेरी होस्ट स्पेसिफिक, एक्चुअली इट नीड्स specific host to infect into the roots and form the nodules and fix the nitrogen. इसलिए राइजोबियम जब भी हम लोग लेते हैं यूज करने के लिए, तो इट शुड बी होस्ट स्पेसिफिक, कोई भी राइजोबियम नहीं चलेगा। सोयाबीन का है तो इट शुड बी ब्राडिराइजोबियम जापोनिकम ही बैक्टीरिया उसमें होना चाहिए। जैसे पी ग्रुप का है तो राइजोबियम पी ग्रुप का जो राइजोबियम है वो पी क्रॉप्स के लिए ही चलेगा। इस तरह से होता है। आइजोटोबैक्टर फॉर नॉन लेग्यूम्स, जैसे नॉन लेग्यूम्स क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल व्हीट है, राइस है, सॉरी व्हीट है, ज्वार है, वेजिटेबल्स भी है, बाकी सब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी है, ये सब के लिए नाइट्रोजन बायोफर्टिलाइजर यूज करना है हमको तो एजोटोबैक्टर ही यूज करते हैं। तो if it is rhizobium biofertilizer, it should be prepared from rhizobium microorganism. If it is azotobacter biofertilizer, it should be prepared from azotobacter microorganism. एजोस्पिरिलम है नॉन लेग्यूम्स क्रॉप्स के लिए, जनरली फॉर पैडी के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एजोस्पिरिलम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। एसिटोबैक्टर, it is special microorganism which can fix nitrogen as well as solubilize the phosphate. It should be used for sugarcane and it should be prepared from only Acetobacter microorganism. Acetobacter a bacteria इतना wonderful है actually. It fixes lot of nitrogen and solubilize phosphate also. Both the capacities it is having, and it is present in roots of sugarcane. It is present in juice of sugarcane. It is present in leaves of sugarcane. It is present in the rhizosphere area of the sugarcane. Everywhere it is present. Phosphate solubilizers, phosphatica biofertilizers, we can say. These are for all crops. It is prepared from phosphate solubilizing microorganism. For example, Bacillus megatherium, Pseudomonas trita, Aspergillus, Penicillium. But generally, bacteria are preferred for the phosphatica biofertilizer production. Then comes mycorrhiza, VAM, vesicular or vesicular mycorrhiza. It is also very wonderful biofertilizer. It is responsible for improved uptake of nutrients from the soil. It is specially for the phosphate, water uptake, and it plays very wonderful role in drought conditions also. It helps crops to survive in the drought conditions, and strong root system development and protection from the nematodes on the roots. So it is potential of different biofertilizers. So here, while using biofertilizers in the agriculture, we are harvesting the potential of these microorganisms in the agriculture. In case of rhizobium, it fixes 30 to 100 kg of nitrogen per hectare per season. In case of Azotobacter, this bacteria has a ample potential
to fix 20 to 35 kg of nitrogen per hectare per season. Azospirillum 30 to 35 kg nitrogen per hectare per season. Acetobacter is having a lot of potential to fix the nitrogen, that is 70 to 150 kg nitrogen per hectare per season. Phosphatica biofertilizers, they can solubilize 20 to 30 kg of phosphate per hectare per season. And in case of VA mycorrhiza, it can mobilize. It mobilizes the nutrients from soil to roots of plants. 30 to 50 kg of phosphorus per hectare per season they can mobilize. In addition to mobilization of the phosphate, it mobilizes nutrients, it mobilizes water and strong root system development. So what are the advantage of biofertilizers then? First of all, it restores the fertility status of soil. Fertility status means what? जितने बैक्टीरिया माइक्रोब्स सॉइल में ज्यादा रहेंगे उतनी फर्टिलिटी स्टेटस ज्यादा रहेगी. It makes the soil live. So while using biofertilizers, what we are doing here, we are inoculating the soil with the microbes, beneficial microbes. Beneficial microbes वैसे भी soil में naturally ही थे, लेकिन due to excess use of chemical fertilizers and pesticides और lack of compost use, हमने उनको पूरा खत्म कर दिया है. लाइव माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गए, इसलिए फर्टिलिटी स्टेटस भी कम हो गई. इसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हमको माइक्रोब्स की बहुत जरूरत है और उसके साथ साथ कंपोस्ट यूज करने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि कंपोस्ट से ही ऑर्गेनिक कार्बन हमको मिलेगा बैक्टीरियल पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए. So it increases the availability of the nitrogen, phosphorus and other nutrients in the soil. It increases farm productivity by say 10 to 25% and activate the soil biologically, help in decomposing plant residues in the soil. It also help in stimulating the plant growth in general and roots in particular. Here we say activate the soils biologically. Means what? When we use biofertilizers, means we are inoculating soil with the microbes. It also stimulates the multiplication of different beneficial microbes in the soil, and so it is activating the soil biologically, help in stimulating the plant growth. And some biofertilizers organisms also secrete some fungistatic and antibiotic like substances which reduces the incidences of certain diseases and increase the disease resistance in the plants. कुछ biofertilizers जैसे Azotobacter है, it secretes some antibiotic like substances during its multiplication and lifespan. That's why it enhances the disease resistance in the plants. जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि राइजोबियम इज वेरी वो स्पेसिफिक. पहले हम लोग राइजोबियम के बारे में बात कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर, डिफरेंट क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप्स ऑफ राइजोबियम. जैसे पी ग्रुप का राइजोबियम है, पी ग्रुप है होस्ट, तो उसके लिए राइजोबियम पी ग्रुप का ही लगेगा. इट कैन कवर ग्रीन पीस, लेंटिल एंड लेथारस. सोयाबीन क्रॉप्स है तो राइजोबियम, ब्राडिराइजोबियम जापोनिकम करके एक राइजोबियम होता है दैट इज स्पेसिफिक फॉर द सोयाबीन क्रॉप्स है सोयाबीन. बीन ग्रुप है, राइजोबियम फेसियोली करके है स्पीशीज, वही यूज करनी है आपको. काउपी ग्रुप है, राइजोबियम स्पीशीज करके आता है, दैट कैन बी एप्लीकेबल फॉर ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, तूर, काउपी, ग्राउंडनट. साइसर ग्रुप है, राइजोबियम स्पीशीज है इसका, बेंगल ग्राम का, वो यूज करना चाहिए. आपको एक स्टोरी बताती हूँ इसकी. जैसे राइजोबियम इज होस्ट स्पेसिफिक. होस्ट स्पेसिफिक मीन्स क्या है? जैसे राइजोबियम जो ग्रुप का है वही राइजोबियम होना चाहिए. हाउ इट लिव इन द नोडल्स एंड हाउ इट वर्क्स फॉर द प्लांट. अगर सोयाबीन का क्रॉप है, हम लोग सोयाबीन का राइजोबियम सीड ट्रीटमेंट करते हैं. सीड के ऊपर हम लोग लगाते हैं. सीड का जर्मिनेशन होके उसके रूट्स तो निकलेंगे. रूट हेयर में राइजोबिया एंटर करता है, उसमें नोडल बनाता है और नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट्स को देता है. ये जनरल प्रिंसिपल है.
लेकिन राइजोबिया पहले प्लांट्स को पूछता है, क्योंकि राइजोबिया बहुत ही सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन से उसको हमेशा डर लगता है, इसलिए उसको शेल्टर चाहिए रहता है काम करने के लिए नेचर में। तो राइजोबियम पूछता है सोयाबीन क्रॉप को कि मुझे शेल्टर चाहिए, आप मुझे शेल्टर दोगे क्या? तो प्लांट बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको शेल्टर देता हूँ, लेकिन आपको रेंट देना पड़ेगा। तो राइजोबियम बोलता है ठीक है, मुझे शेल्टर दे दीजिए, मैं आपको नाइट्रोजन फिक्स करके दूंगा, दैट विल बी माय रेंट। ओके, it enters into cortical cells of the roots and starts staying there. नाइट्रोजन फिक्स करना शुरू करता है। नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, जैसे हम लोग काम करते तो हमको खाना तो चाहिए ना, कार्बन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तभी एनर्जी मिलेगी। वैसे ही राइजोबियम को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। इन दैट केस प्लांट्स को बोलता है कि मुझे खाना भी चाहिए, तो प्लांट बोलता है कि ठीक है, मैं आपको कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करता हूँ। मीन्स खाना दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, मीन्स क्या कर रहा है, और ये रेंट दे रहा है उसको नाइट्रोजन फिक्स करके, मीन्स इट इज स्टेइंग देयर एज ए पेइंग गेस्ट। ओके, ये एक प्रिंसिपल है कि ये पेइंग गेस्ट करके ही राइजोबिया प्लांट्स के रूट्स में, नोडल्स में रह के नाइट्रोजन फिक्स करता है। नोडल से एक नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट है जहां पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अगर राइजोबियम इज नॉट स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर क्रॉप, अगर सोयाबीन का प्लांट है और बीन ग्रुप का राइजोबियम हमने यूज किया इसी ट्रीटमेंट में, तो क्या होगा, बाय मिस्टेक इट अलाउस, उसको तो पहले अलाउ होगा ही नहीं कि अंदर आओ रूट्स में। अगर बाय मिस्टेक वो अंदर चला भी गया है तो वो नाइट्रोजन फिक्स कर नहीं सकेगा, क्योंकि प्लांट उसको कार्बोहाइड्रेट देगा ही नहीं। इट विल स्टॉप और कट दी कार्बोहाइड्रेट सप्लाई टू दी राइजोबिया, और उसमें क्या होता है कि उसको खाना नहीं मिलता, वो डोर्मेंट स्टेज में चला जाता है। इसलिए हम लोगों को कुछ कुछ प्लांट्स के नोडल्स ग्रेश कलर के या काले हो जाते हैं ना, इसी की वजह है क्योंकि वो या ग्रीन होते हैं इंस्टेड ऑफ रेड, या पिंक। पिंक होने चाहिए, नहीं तो रेड होने चाहिए, दैट इज हेल्दी और स्पेसिफिक राइजोबिया है, इसका इंडिकेशन है। अगर वो ग्रेश है या ग्रीनिश है रूट नोडल्स, इसका मतलब वो नॉन स्पेसिफिक राइजोबिया इज स्टेइंग इनसाइड, और उसमें कोई भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता नहीं है। तो ये स्पेसिफिसिटी है राइजोबियम की। ये हमने अभी बात कर ली कि on application to the seed, rhizobia grow in number around the roots, enter into the roots and form nodules. In nodules fix the atmospheric nitrogen in far excess of their requirement, and excess nitrogen is provided to the host. If adequate nodulation is achieved, then the entire nitrogen requirement of the legumes crops can be met with this system, that is rhizobium application. Rhizobium biofertilizer for legumes, just like general details says ke rhizobium biofertilizer is a carrier based or liquid based formulation of live rhizobium cells. Every 1 gram or 1 ml of these products contain 10 to 100 millions of live bacteria. On seed treatment, these bacteria multiply rapidly in soil and enter into the developing roots through the root hairs and form the nodules. These nodules are the actual site of biological nitrogen fixation, and the yield and growth of the plant are directly dependent on the nodules. Which types of nodules are there? It will show how much nitrogen is being fixed here. This is just the details actually, how root hair is there in soil and how it enters into the root hair. It is a thread of infection, yellow color. Then nodule formation, it is a multiplication of rhizobia in the nodules. This is a reddish. If you cut the nodules, it will show red color or the pinkish color. That is the legume hemoglobin is always there. Internal structure of nodules. Different types of nodules. This is the French beans, first one, Sesbania rostrata, then chickpea, last one is soybean crops. Generally, estimates of total nitrogen fixation kg per hectare per season by different legumes under the natural conditions: alfalfa, red gram, clover,
soybean crops, coffee and groundnut, green gram, range from 50 to 100 या 200 kg per hectare per season ये फिक्स करते हैं। Being a biological product, biofertilizers are biological products. We have to take utmost care while using or while producing biofertilizers and while storing the biofertilizers, because factors affecting the nodulation and nitrogen fixation in legumes. High soil temperature exceeding 35 degrees centigrade reduces the survivability of rhizobia in soil. Soil pH below 5.8 and above 8 reduces the nodulation. Soils poor in available phosphorus. Some seed dressing like fungicides and pesticides inhibit the rhizobial growth and the nodulation. Generally seed sowing जब होती है तब सीड को कोट किया जाता है फंजीसाइड से। अगर फंजीसाइड इट इज नॉट compatible with the rhizobium biofertilizer, then it will definitely affect the rhizobial population and ultimately on nodulation it will affect. So how to overcome these limiting factors? Always store biofertilizer packets in cool and dry place before application in fields. In hot summer months, sowing should be done in morning hours. Generally rainy season में sowing होती है, तो either evening में या early in the morning sowing करनी चाहिए। And seed treatment जो भी है early in the morning करके उसको सुखा के अच्छे से शेड में, फिर बाद में sowing करनी चाहिए। Pellet the rhizobium treated seeds with lime for acidic soil. अगर soil acidic है उसमें सीड को लाइम हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर अल्कलाइन सॉइल है तो इन दैट केस जिप्सम शुड बी एडेड। adequate phosphorus fertilization ensures the good nodulation and nitrogen fixation. Generally soil में nitrogen, potassium, phosphate, they are the major nutrients for the plants, इसलिए phosphorus fertilization भी अच्छा होना चाहिए, nitrogen fertilization भी अच्छा होना चाहिए। Among seed dressing, fungicides, mavestin and dithane M45 and among granular pesticides, carbofuran can safely be used. लेकिन आजकल कोई भी सीड ड्रेसिंग के लिए फंजीसाइड केमिकल फंजीसाइड यूज नहीं करते हैं। जनरली बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी करके एक बायो पेस्टिसाइड है, इसी का यूज होता है। डिफरेंट क्रॉप्स है अपने एग्रीकल्चर में, उसके लिए डिफरेंट बायोफर्टिलाइजर्स यूज करना चाहिए। कैसे? जैसे हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर्स है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग फॉस्फेटिका है, वीए माइक्रोराइजा है, इस टाइप के अलग अलग बायोफर्टिलाइजर्स हमारे सामने हैं। लेकिन हमारे क्रॉप जो भी है उसके लिए अलग अलग बायोफर्टिलाइजर्स सिलेक्ट करना और उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन मेथड एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे लेग्यूम है उसके लिए राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर्स हम लोग यूज करते हैं। और जो क्रॉप्स सीड सोन करके लेते हैं, जिसकी बुआई होती है, सोइंग करके हम लोग क्रॉप्स लेते हैं, जैसे सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, मूंग है, उड़ीद है, तूर है, कॉटन है, ये सब हम लोग सीड सोइंग करके ही उसके डायरेक्टली सीड सोन क्रॉप से ही। इसके लिए सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है विथ राइजोबियम। मीन्स राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर शुड बी यूज फॉर ओनली लेग्यूम क्रॉप्स। लेग्यूम क्रॉप्स मीन्स दाल वर्गीय जिसको बोलते हैं, उसके लिए राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर यूज करना जरूरी है बाय सीड ट्रीटमेंट। एंड फॉस्फेटिका एज अ सॉइल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फॉस्फेटिका हम लोग आगे देखेंगे। प्लीज रिमेंबर राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर इज क्रॉप स्पेसिफिक एंड फॉर डिफरेंट क्रॉप स्पेसिफिक राइजोबियम पैकेट विल बी नीडेड। ये हमने पहले ही डिस्कस किया। स्पेसिफिक राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर इज नीडेड फॉर द स्पेसिफिक पोस्ट। ये सब मैंने इंटरनेट से निकाले हुए हैं। रिस्पॉन्स टू द इनोकुलेशन ऑन सोयाबीन इन राइजोबिया फ्री सॉइल्स और राइजोबियम ट्रीटेड सॉइल दिख रहा है। इफेक्ट ऑफ राइजोबियम इनोकुलेशन से, इससे अच्छे फील्ड के क्रॉप्स ज्यादा अच्छे हैं।
अभी तक हमने राइजोबियम बायोफर्टिलाइजर्स के बारे में बात की। अभी हम लोग बात करते हैं एजोटोबैक्टर के लिए, जैसे नॉन लेग्यूम क्रॉप्स के लिए। आप लोग जानते हैं नॉन लेग्यूम क्रॉप्स में क्या क्या आता है? गेहूं है, ज्वार है, मेज है, बाजरा है, रागी है, और ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। पैडी भी है, कॉटन है, और बाकी हॉर्टिकल्चर भी आता है, जैसे फल फल वाले जितने भी हैं वो सब नॉन लेग्यूम्स में ही आते हैं। उसके लिए अगर हमको नाइट्रोजन बायोफर्टिलाइजर यूज करना है, we should use azotobacter as a seed treatment or seedling treatment and phosphatica as a soil treatment. ये जो पिक्चर्स दिख रहे हैं ना कैबेज की, दे आर ऑल ऑर्गेनिक कैबेज। एक फार्मर है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, और अभी ये कंडीशन है कि इतनी अच्छी सॉइल बन गई है उसकी कि वो कुछ भी यूज नहीं करता है, बस सोइंग करता है और मल्चिंग विद जितना भी डेब्रिस निकलता है वो मल्च कर देता है, कंपोस्ट बनाता है, उसी से अपना काम करता है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी लेते हैं, कमर्शियल लेवल तक गए हैं अच्छे, उनको अच्छे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो नॉन लेग्यूम्स के लिए हम लोग एजिडोबैक्टर नाइट्रोजन बायोफर्टिलाइजर यूज करेंगे, फॉस्फेटिका एज ए सॉइल ट्रीटमेंट। वो दे वर्क एक्चुअली, एजिडोबैक्टर एजोस्पिरिलम बायोफर्टिलाइजर कैसे काम करते हैं? जैसे हम लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं एजिडोबैक्टर की, यहाँ पर भी सीड्स ऑन क्रॉप्स जो है, बीज लगा के जो क्रॉप्स लिए जाते हैं डायरेक्टली, उसके लिए एजिडोबैक्टर शुड बी यूज विद द हेल्प ऑफ which method? Seed treatment method. On being applied, comes in contact with the developing roots and develop a thick sheath of bacteria around the developing roots. Here they fix the atmospheric nitrogen non-symbiotically. This fixed nitrogen is provided to the plants in the due course of time. Besides fixing nitrogen, these organisms also secrete some growth promoting substances like vitamins, I, which improves the vegetative growth and root development, also provides some resistance against the diseases. Selection of right biofertilizer in non-legume crops. एजिडोबैक्टर कब यूज करना चाहिए? जैसे इन अपलैंड सॉइल्स हम लोग यूज कर सकते हैं विथ न्यूट्रल पीएच है, ऑप्टिमम टू लो मॉइस्चर है कंडीशन सॉइल में, लाइट एरेटेड सॉइल होना बहुत जरूरी है एजिडोबैक्टर के लिए, क्योंकि एजिडोबैक्टर इज द aerobic microorganisms. It needs oxygen for its growth and to multiply, and for its working it needs oxygen. इसलिए सॉइल की कंडीशंस भी एरेटेड होना बहुत जरूरी है। और अगर पैडी फील्ड्स में तो सब पानी होता है, इसमें माइक्रो एरोफिलिक कंडीशंस ज्यादा होती हैं, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन बायोफर्टिलाइजर यूज करना है तो एजोस्पिरिलम बायोफर्टिलाइजर हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि एजोस्पिरिलम बाय नेचर इज अ माइक्रो एरोफिलिक, it works there very well. और अगर इंटरमीडिएट सिचुएशंस है, in that case, sorry, एजिडोबैक्टर प्लस एजोस्पिरिलम in 1:1 रेशियो हम लोग यूज करेंगे। डिफरेंट मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन है। पहली है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट किसमें यूज करना है हमको? जहां पर क्रॉप्स को सोइंग करके लिया जाता है, डायरेक्ट सीड्स ऑन क्रॉप्स से फील्ड में, उसके लिए सीड ट्रीटमेंट करनी है नाइट्रोजनस बायोफर्टिलाइजर्स की। सीडलिंग रूट ट्रीटमेंट, इससे क्या होता है कि जहाँ पर बेड्स बनाते हैं, नर्सरी बेड्स बनाते हैं और पौधे रेस किए जाते हैं नर्सरी बेड्स में, और उसको फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड्स में। जैसे वेजिटेबल में टोमेटो है, मिर्ची है, पालक है, इसके पौधे बना के फिर उसको सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करते हैं। इन दैट केस, और पैडी में भी होता है, उसके रूट जो होते हैं वो बायोफर्टिलाइजर का प्रिपरेशन घोल बना के उसमें डीप करके फिर ट्रांसप्लांट करना जरूरी है। और सीड सेट्स और द ट्यूबर ट्रीटमेंट, जैसे हल्दी है, उसके सेट जो होते हैं वो हम लोग इसमें डीप करके फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट जैसे जहाँ पर सीड ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है, सीडलिंग रूट ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है, जैसे हॉर्टिकल्चर प्लांट से, उसमें हम लोग सॉइल ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी रहता है। तो इन दैट केस नाइट्रोजन बायोफर्टिलाइजर कैन बी यूज बाय सॉइल ट्रीटमेंट अलोंग विद द फॉस्फेटिका। डोजेस क्या है इसके? सीड ट्रीटमेंट अगर करते हैं हम लोग सीड्स की, 200 ग्राम का पैकेट मिलता है, तो
500 ml जैसे ½ लीटर पानी लेना है आपको, उसमें घोल बना के एक 10-12 kg का सीड का जो भी बर्तन होगा उसमें डाल के उसके ऊपर डाल देना है। उसको पूरा अच्छे से मिक्स करके, हाथों को कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता, एक लेयर आनी चाहिए उसके ऊपर, और थोड़ा सा सुखा के उसको शेड में, उसके बाद आप सोइंग कर सकते हैं। सीडलिंग रूट ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे वेजिटेबल्स के प्लांट्स है, छोटे छोटे पौधे हैं, हम लोग लगाते हैं, उसके लिए एक पॉट में या ड्रम में 1 kg पर एकड़ के हिसाब से पानी लेके 2 kg या 1 kg बायो फर्टिलाइजर लेना है, नाइट्रोजनस बायो फर्टिलाइजर प्लस 5 लीटर पानी लेना है। वो घोल बना के उसके जो रूट्स है वो डीप करके रखने हैं आपको 3 आवर्स के लिए, 2 to 3 आवर्स। उसके बाद आप उसकी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट है, जैसे फॉस्फेटिक का हम लोग यूज करते हैं, 2 to 4 kg पर एकड़ ये जाना चाहिए, अलॉन्ग विथ 200 kg ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट में मिक्स करके अच्छे से रख दीजिए, रात भर या ओवरनाइट उसको रख दीजिए रूट क्यूरिंग के लिए, और फिर पूरा अच्छे से मिक्स हुआ हुआ कंपोस्ट जो रहता है अलॉन्ग विथ दिस फॉस्फेटिक का बायोफर्टिलाइजर्स 1 एकड़ में उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, सॉइल ब्रॉडकास्टिंग। ये हमने अभी डिस्कस किया। इन ऑल डायरेक्ट सीड्स ऑन क्रॉप्स such as wheat, sorghum, maize, cotton, etc. use nitrogen biofertilizers as a seed treatment. In crops where seeds are sown first in a nursery and then seedlings are raised, are transplanted, such as in vegetables and in paddy, treat seedling root treatment. In crops where above mentioned methods cannot be used, apply biofertilizers in the soil. इस तरह से करते हैं सीड ट्रीटमेंट। अभी हमने बताया कि 200 ग्राम क्रॉप स्पेसिफिक राइजोबियम लेके आधा लीटर पानी लेना है, मिक्स करना है अच्छे से, और उसको 10 kg या 12 kg सीड के ऊपर मिक्स डाल देना है। उसको मिक्स विथ हैंड्स टू मेक यूनिफॉर्म फुटिंग, ड्राई इन शेड एंड सो इमीडिएटली। ये ट्रीटेड सीड्स है, ऐसे दिखते हैं, जैसे एजोडोबैक्टर है व्हीट के लिए बनाया हुआ ये। इसी तरह से सभी सीड्स के लिए हम लोग कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट। सीडलिंग रूट डिप ट्रीटमेंट, जैसे पौधे होते हैं वेजिटेबल्स के, इस तरह से घोल बना के आप उसका रूट डिप ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। पैडी फीड्स में सस्पेंड 2 kg ऑफ ईच ऑफ एजोस्पिरिलम एंड फॉस्फेटिका, दोनों मिक्स करके 2 kg in water in a bed of 2 by 1 meter and deep the roots of paddy seedlings in this suspension for 8 to 12 hours. ओवरनाइट रखना है उसको पैडी सीडलिंग्स को, फिर बाद में उसको दूसरे दिन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर्स है, फॉस्फेटिका है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर्स आर always used by the seed treatment, seedling root dip treatment, but phosphatica biofertilizer should be used only by soil treatment, क्योंकि phosphate is present in the insoluble form of phosphate is present only in the soil and it works on the this microorganism present in the phosphatica biofertilizers works on that insoluble form of phosphate and it converts into the soluble form of phosphate for the plants. बायोफर्टिलाइजर्स में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं हमने पहले ही देखा है इसको। टेम्परेचर मेन है, टेम्परेचर गर्म कंडीशंस वो टॉलरेट नहीं कर सकता है, 28 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड में वो रह सकता है, क्योंकि इसकी भी शेल्फ लाइफ होती है, क्योंकि माइक्रोब्स है, इट इज वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर एंड if it goes above 35 degree temperature then it is very dangerous to life of that particular bacteria which is present in the biofertilizer packet. So it should be stored at 28 to 32 degree centigrade. जब तक आप यूज नहीं कर सकते करते, आप लेते हैं दुकान से या कहीं से भी इंस्टीट्यूट से, उसको स्टोर करना है, फिर बाद में एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही निकलना है वहां से। सॉइल पीएच न्यूट्रल होनी चाहिए, 6 to 7.5 ऐसे होने चाहिए। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल में अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो ही माइक्रोफ्लोरा मल्टीप्लिकेशन अच्छा होगा। जो भी हम लोग माइक्रोब्स डाल रहे हैं इसमें
उसका मल्टीप्लिकेशन अच्छा होगा क्योंकि उसको खाद मिलेगा, ऑर्गेनिक कार्बन acts as a good food for the this microbes. In soils poor in organic matter, the growth of biofertilizer microbes is very much reduced, and it is mainly restricted to the rhizospheric micro environment. Use of pesticides. Most of the insecticides in their recommended doses do not have significant inhibitory effect on biofertilizer microorganism, but among granular pesticides, 4,8-G is inhibitory for the small period of time. Generally, हम लोग recommend नहीं करते हैं कि pesticides आप use करो. We recommend only botanical pesticides and biopesticides for sustainability of the ecosystem. Then herbicides से, fungicides से. ये कुछ रिजल्ट्स हैं इंस्टीट्यूट्स के या हमारे ऑफिस से जो भी डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स हम लोग मेंटेन करते थे फार्मर्स फेयर्स के लिए या फार्मर्स डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए, ये सब हमने कलेक्ट किए हुए डाटा है. इसमें हम लोग देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ इनोकुलेटिव पल्स क्रॉप ऑन द यील्ड ऑफ सब्सिक्वेंट सीरियल. जैसे इस सीजन में हमने राइजोबिया यूज किया सोयाबीन के ऊपर, नेक्स्ट सीजन में जो वीट लेगा तो उसके लिए भी कुछ रेसिडुअल इफेक्ट नाइट्रोजन होता है, रेसिडुअल नाइट्रोजन होता है सॉइल में, उसका इफेक्ट नेक्स्ट क्रॉप में भी आता है. इफेक्ट ऑफ एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पिरिलम ऑन नॉन लेग्यूम क्रॉप्स जैसे राइस है, व्हीट है, मेज है, मस्टर्ड, कॉटन, सनफ्लावर. आप देख रहे हैं यहाँ पर एक 10 से लेके 15% तक इम्प्रूवमेंट इन यील्ड दिखी है फॉर कंट्रोल. वेजिटेबल्स भी है, एजोटोबैक्टर एजोस्पिरिलम का यूज करने के बाद ब्रिंजल, कैबेज, कॉलीफ्लावर. वेजिटेबल्स में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है इसके, बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स है. इसमें भी एक 10 to 15% इंक्रीज हमको दिखती है. एग्जैगरेट नहीं करना चाहती हूँ मैं. इसमें भी व्हीट, मेज, अनियन, टोमेटो, शॉर्गम, चिली, कॉलीफ्लावर से. So, desirable results of this biofertilizer application on the crops in terms of crop productivity, soil productivity, and fertility status of the soil can only be achieved with the help of only good quality biofertilizers. Good quality of biofertilizers means what? It can be prepared with the use of efficient strains, good quality adhesive material, high grade carrier, good quality suitable nutrient broth, and packaging material. Good quality biofertilizers means what again? It should conform the FCO standards, fertilizer control order के जो भी standards है, specifications है, उसके अनुसार ही उसका प्रोडक्शन और उसके जो रिजल्ट्स है, उसकी जो स्ट्रेंथ है माइक्रोब्स की, वो होनी चाहिए. जैसे फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया अगर हम लोग लेते हैं फॉस्फेटिका बायोफर्टिलाइजर्स, तो वो एक पर्टिकुलर इट इज अवेलेबल इन मॉइस्ट पाउडर फॉर्म एज वेल एज इन द लिक्विड फॉर्म इन द मार्केट. तो 1 ग्राम अगर फॉस्फेटिका बायोफर्टिलाइजर है, उसमें एटलीस्ट मिनिमम 5 into 10⁷ CFU पर ग्राम ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए of that particular microorganisms. Phosphate solubilizing microorganism, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं Bacillus megatherium या Pseudomonas striata हम लोग यूज करते हैं. That Pseudomonas striata should be present in this range 5 into 10⁷ per gram, and then it should be minimum 1 into 10⁸ CFU per ml. एट कंटेमिनेशन लेवल कैसे होना चाहिए? कंटेमिनेशन लेवल जैसे सॉलिड है उसमें कंटेमिनेशन लेवल बहुत ज्यादा आता है क्योंकि ओपन मैन्युअली बनाते या जैसे भी है बहुत प्रोडक्शन लेवल में काफी कुछ होता है. करियर मटेरियल जो होता है वो भी नॉन स्टेराइल होता है. इन दैट केस नो कंटेमिनेशन एट 10⁵ डाइल्यूशन. कंटेमिनेशन इज अलाउड बट नॉट मोर देन 10⁵ डाइल्यूशन. pH should be of that product should be neutral. Particle size अगर solid है तो it should pass to this much of mm mid sizes.
मॉइस्चर शुड बी 30 to 40% अगेन, और जो पर्टिकुलर माइक्रोब्स यूज किया हुआ है उसमें इट शुड बी वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन इन सॉइल। इसको अलग अलग ढंग से चेक किया जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के लिए भी चेक किया जाता है कि कितना एक पर्टिकुलर माइक्रोब है उसमें। जैसे सुडोमोनास स्ट्राटा है, सुडोमोनास स्ट्राटा को आइसोलेट करके फिर उसका ब्रॉथ बना के स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली उसका फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन कितना किया उसमें। एक पिकोस का मीडिया होती है जिसमें टीसीपी ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट डाल के उसमें देखा जाता है कि कितना फॉस्फेट सोल्युबलाइज करता है, वो आप लोगों को मालूम होगा शायद। तो इस तरह से, और प्लेट में अगर करते हैं पिकोस का मीडिया करके टीसीपी डाल के, उसमें भी देखा जाता है कि इसका जो जोन ऑफ सोल्युबलाइजेशन है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्लेट्स में, जोन ऑफ सोल्युबलाइजेशन एक पर्टिकुलर 5 मिलीमीटर का होना चाहिए डायमीटर, तभी वो एफिशिएंट माना जाता है टू यूज एज ए फॉस्फेटिक बायोफर्टिलाइजर। ये रहा फॉस्फेटिक बायोफर्टिलाइजर का। देन एजोटोबैक्टर के बारे में बात करते हैं हम लोग। अगर सेम है, जैसे सॉलिड है तो 1 ग्राम में 5 × 10⁷ CFU पर ग्राम होना चाहिए। लिक्विड है 1 × 10⁸ होना चाहिए। कंटामिनेशन लेवल नॉट मोर देन 10⁵ डाइल्यूशन। pH शुड बी न्यूट्रल, पार्टिकल साइज भी उतना ही होना चाहिए। मॉइस्चर 30 to 40%, and efficiency characteristic in case of azotobacter, it is the non-symbiotic nitrogen fixer. It should have the capacity to fix at least 10 milligram of nitrogen per gram of sucrose consumed. ये जिल्डन मेथड से यूज किया निकालते हैं इसको, नाइट्रोजन कितना फिक्स होता है। ये प्लेट में हम लोग देख रहे हैं एजोटोबैक्टर क्रोकम। दिस बैक्टीरिया इज वेरी वेरी गुड बैक्टीरिया। ये सब प्लेट्स मैंने बनाई है पहले, मेरे बहुत प्यारे माइक्रोब्स थे ये, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, पीएसबी। और ये पिगमेंटेशन जो देखते हैं ना, मेंडेलियन पिगमेंटेशन, इट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजोटोबैक्टर क्रोकम, यू मस्ट बी नोइंग। एंड दिस बैक्टीरिया शुड हैव द कैपेसिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन एट लीस्ट 10 मिलीग्राम। लाइकवाइज राइजोबियम का भी वैसे ही है। बेस अगर है, कैरियर बेस है, तो पर ग्राम में 5 × 10⁷ होना चाहिए। लिक्विड है तो 1 × 10⁸ सेल्स होनी चाहिए। कंटेमिनेशन लेवल नॉट मोर देन 10⁵। pH न्यूट्रल है। मॉइस्चर 30 to 40% है। एफिशिएंसी कैरेक्टर इन केस ऑफ राइजोबियम, राइजोबियम हम लोग जब यूज करते हैं बायोफर्टिलाइजर या टेस्टिंग करते हैं, इट शुड शो द इफेक्टिव मॉड्यूलेशन ऑन पर्टिकुलर होस्ट। अगर मूव का राइजोबियम हम लोग यूज कर रहे हैं, मूव का राइजोबियम, मूव के जो भी सीडलिंग्स है हम लोग लेबोरेटरी में जब टेस्ट करते हैं, इट शुड शो इफेक्टिव और प्रोफ्यूज नोडुलेशन ऑन द मूव रूट्स, सीडलिंग में आना चाहिए। ये भी एक एफिशिएंसी कैरेक्टर टेस्ट करने का तरीका है। सो क्वालिटी टू गेट अ गुड रिजल्ट्स, एक्चुअली डिजायरेबल रिजल्ट्स अगर हमको चाहिए आउट ऑफ यूज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स, देन आवर बायोफर्टिलाइजर शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एज वी डिस्कस अर्लियर। सो क्वालिटी क्या है? एक्चुअली क्वालिटी इज एक्सीलेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छे क्वालिटी का हो, मतलब एक एक्सीलेंट क्वालिटी का हम लोग चाहते हैं, तो फार्मर्स भी चाहते हैं कि उनको जो भी प्रोडक्ट मिले एक एक्सीलेंट क्वालिटी का हो। क्या एक्सपेक्ट करते हैं जनरली? वो एक इजी डिलीवरी होनी चाहिए उनके प्लेस पे, कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, और उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। प्लांट्स क्रॉप सॉरी जब हम लोग सॉइल में यूज करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, आउट ऑफ दैट दे शुड गेट गुड रिजल्ट्स। और क्वालिटी कंट्रोल जैसे प्रोडक्शन यूनिट से, बायोफर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट से महाराष्ट्र ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट से, और उनके पास लेबोरेटरीज भी होती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, सोफिस्टिकेटेड, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है लोगों की, एफिशिएंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं। एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू वो बायोफर्टिलाइजर्स बनाते हैं, फर्मेंटर से सब कुछ होता है। एक स्टेराइल कंडीशंस में ये सब किया जाता है, क्योंकि अगर स्टेराइल कंडीशन हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में या प्रोडक्शन यूनिट्स में, तो बायोफर्टिलाइजर जो भी प्रोडक्ट निकलेगा इट विल बी फुल ऑफ कंटेमिनेशन। और जनरली होता क्या है कि
बायोफर्टिलाइजर बनता है, पैकेट बनता है या बॉटल बनती है लिक्विड, शुरू में किसी को दिखता नहीं है, जैसे क्योंकि अगर अच्छे से क्वालिटी कंट्रोल, उनका इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल चेक नहीं हुआ लेबोरेटरी पे, और वो पैकेट या बॉटल डीलर सेंड में चली गई सेलिंग के लिए मार्केट में, कुछ दिन के बाद वो बॉटल फूलना शुरू हो जाती है, गैस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, या फिर पैकेट भी फूल जाता है, ऐसे गोल गुब्बारा बन जाता है उसका। क्यों होता है? क्योंकि उसमें अगर राइजोबिया का पैकेट है या बॉटल है, राइजोबिया की स्ट्रेंथ तो है ही उसमें, अगर हमने कंडीशन अच्छे से मेंटेन नहीं की लेबोरेटरी में, उसके साथ साथ कंटेमिनेशन भी उसमें एंटर हो चुका है, लेकिन शुरू में कोई भी प्रॉब्लम दिखता नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिखता है वो, लेकिन लॉन्ग रन में एक शेल्फ लाइफ के अंदर अंदर वो पूरा गैस भर के, कभी कभी बर्स भी होते हैं डीलर्स के शॉप्स में वो बॉटल्स, फिर वापस किए जाते हैं, बहुत कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स के। तो इन दैट केस क्या होता है कि अपना जो राइजोबिया है वो भी मल्टीप्लाई होता है या एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ में रहता है, लेकिन जो कंटेमिनेशन है वो ग्रो होना शुरू होता है, क्योंकि उसको टेम्परेचर अच्छा मिल जाता है आउटसाइड, क्योंकि लेबोरेटरी में तो एक एसी कंडीशंस होती है, तो कम टेम्परेचर में कंटेमिनेशन बढ़ता नहीं है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है डीलर सेंड पे, स्टोरेज कैसे कंडीशंस होती है मालूम नहीं होती, तो ज्यादा बढ़ गया टेम्परेचर तो कंटेमिनेशन के लिए बढ़ने के लिए अच्छी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, और फिर रैपिडली मल्टीप्लाई होके अपना राइजोबिया या जो अपना रिस्पेक्टिव बैक्टीरिया है इफेक्टिव, वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और कंटेमिनेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर ये बॉटल या पैकेट फार्मर्स यूज करते हैं, उनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता, उल्टा सॉइल में और पैथोजेंस आ जाते हैं। इसलिए प्रोडक्शन यूनिट शुड टेक utmost care while preparing biofertilizer, producing biofertilizers, and they should maintain in-house quality control check. So to ensure the appropriate quality of product to the consumers, to ensure the appropriate crop response, to check the flow of substandard material in the market, and to suggest the improvement in the production of biofertilizer, quality control is very much essential. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हम लोग बात करते हैं। बायोफर्टिलाइजर बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी है, और इसमें पोटेंशियल भी है, क्योंकि माइक्रोब्स हैं, बहुत ही पोटेंशियल माइक्रोब्स हम लोग यूज करते हैं इसमें, और वी कैन से दीज आर द मिरेकल्स ऑफ नेचर। सो बायोफर्टिलाइजर्स हैव proven potential in nutrient supply. For best benefits, quality must be given due importance. Application by appropriate method is also key to the success. First is quality, then second is appropriate methodology. अगर हम लोग सीड ट्रीटमेंट की जगह सॉइल ट्रीटमेंट यूज करते हैं नाइट्रोजन बायोफर्टिलाइजर्स के लिए, या फॉस्फेटिक का बायोफर्टिलाइजर हम लोग सीड ट्रीटमेंट से यूज करते हैं, इन दैट केस रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो सॉइल में चला जाएगा, जो भी माइक्रोब्स हम लोग यूज करते हैं वो सॉइल में चले जाएंगे, लेकिन प्लांट्स को कोई यूज नहीं होगा। Coupled with new technology and effective strains, biofertilizers will play a prominent role in organic farming as well as natural farming. So, ये सब हमने बायोफर्टिलाइजर्स कैसे यूज किए जाते हैं, तो बायोफर्टिलाइजर्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, तो कैसे मेथोडोलॉजीज क्या है, किस क्रॉप्स के लिए यूज करना चाहिए, क्वालिटी क्या है, उसके एफसीओ के स्टैंडर्ड्स के स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये सब हमने अभी डिस्कस किए। I think it's enough for your syllabus. Thank you so much. Thank you, Sarita madam. It was a very informative and interesting lecture. And I think audience, if you have any queries, you can ask her. The topic was so interesting. And you can give my number also. मैडम आप मेरा नंबर भी दे सकते हैं, अगर कभी भी जरूरत पड़े, कुछ गाइडेंस चाहिए, आप कभी भी बोल सकते हैं उनको फोन करने के लिए। Okay, madam, so kind of you. Okay. Are there any questions, audience? I think there are no questions. So
Thank you very much, madam. And on behalf of Government E. Raghavendra Rao Postgraduate Science College, I thank you from the core of my heart. And you have revealed all the facts and figures about the biofertilizers in a very simple and interesting way. And for throwing the light on the some important points like how the right fertilizer to be chosen and what are the methods of applications and their importance and what is the importance of quality control and what are the future prospects of biofertilizers. So you dealt all the points in a very simple points, and that seems that how you the simplicity of your talk was that you are giving your services to the local farmers. So इतना सिंपल तरीके से आपने बताया तो कोई भी लेमन को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर्स केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं उससे हम हाउ टू गेट रीड ऑफ एंड वी हैव टू मार्च टुवर्ड्स द बायोफर्टिलाइजर्स एंड द बायोपेस्टिसाइड्स। सो थैंक यू मैडम वेरी मच फॉर योर informative lecture. Thank you. Thanks. Thank you so much, all of you. Thank you once again. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, sir.